Yeah. So I always start with the story of a tensed patient, and also Facebook Live people. My apologies because I may not be looking at you because I'm looking at my PowerPoint. So don't feel ignored, please. Thank you. Yeah. So I always start with the story of a tensed patient, where once patient once ran away from the operation theater and reached home. So the relatives said, "Oh, you are supposed to get operated today, and how come you are here?" So the patient said, actually, the nurse 3 times, she said, don't worry, everything will be all right. And third time when she said, I ran away. So he said, that's the duty of the nurse to console you. He said, she was not telling me, she was telling the operating doctor. And therefore I ran away. So this is what happens when a doctor has not studied well, that the patient starts running away from the operation theater, from his clinic. And that's where the need is, where we have to study properly. Next slide, please. So if we don't study, the patient will be tensed. So therefore we should study. Next. So let's list out what are the common problems faced by the students in while studying. So the next is the list of those problems. Yeah, can we go to the next slide? So this is the first list, and I have on the next slide the next list. Next slide. Yeah. And now we'll go one by one, and here comes the first. The first problem. The first problem uh, which the students face while studying is note taste. Now, what is this note taste? Uh, we go to the cinema theater, right? And on the cinema theater, I'll give you an example. Suppose you are booked for a show from 9 to 12 in the night, and then 7 o'clock onwards you start getting a kind of we start getting a very elated feeling from 7 o'clock onwards, that yeah, now I'm going to go to the theater. And then you are having your food at 8 o'clock, you are thinking about the movie, and then 8:45 you stand before the theater, you look at the theater and you feel, oh, now I'm going to go in this theater. Okay, now I'm going to go in this theater. And then what happens is you feel so nice, you're just feeling so nice. So uh, what I ask the students, that does this happen for your 9 o'clock lecture? Whether at 9 o'clock lecture, 7 o'clock onwards in the morning, you start feeling, oh, now when will it be 9 o'clock, and when will I go to the college, and when will I enter this college building? And 8:45 you are standing near the college building. Do you get that feeling that, oh, now I'm going to enter? You know how what happens when people enter the yeah, okay, sorry. But when you are sharing the screen, how does it make a difference when the front camera is on? Now it is okay. Okay. Yeah. Yeah. So now one thing you can do is, whenever I'll tell you to stop presenting, you can reduce the PPT, and I can see those people. Next slide, please. Next slide. Yeah. So this is what happens when people are eating the popcorns, and they don't even understand how the hand automatically goes to the popcorn. uh, so we should understand today's day and age about time spent on gadgets.
So can you stop presenting and give me the screen so that I can personally talk with the participants? Yeah. So this is how I look. Thank you so much for calling me, and all of them are medical students. They all are engineering students. Okay, okay, okay. Thank you so much for inviting me on this forum. And on the slide it was written, I'm going to talk about gadgets, and I'm going to tell you a story of Mr. Baban on airport. So Mr. Baban was about to catch his maiden flight. First time he was traveling. So he went to the airport and he goes to through the security check and everything, and he has now reached the terminal gate from where he is going to board the flight. And suddenly Baban sees a machine. Baban sees a machine, and in that machine is written, put a 5 rupee coin. So Baban puts a 5 rupee coin, he stands on it, and a message is displayed. Your name is Baban, your weight is 65 kgs, and you are going to London. Now Baban says everything else is okay, weight is 65 kg is okay, going to London is okay, but my name is Baban, how this machine is understanding? So Baban just gets down, changes his hairstyle, puts on a goggle, again puts a 5 rupee coin. Your name is Baban, you are going to London, and uh, your so he is again saying, how your weight is 67 kg. He says, how it is understanding my name is Baban? So Baban goes inside the bathroom, changes his clothes, changes the hairstyle, puts a hat, puts another goggle, and puts a 5 rupee coin. And the message is displayed. Your name is Baban, your weight is 67 kgs, and your flight to London has left. Now Baban, first 2 times the message was your name is Baban, your weight is 67 and you are going to London. The third message said your name is Baban, weight is 67, flight to London has left. Then Baban starts thinking, oh, I just kept on playing with this machine, and the whole purpose why I came to the airport is not served. And therefore what has happened is my flight I have lost. So therefore these students of engineering colleges, medical colleges, whichever college we belong to, we sometimes forget the purpose why we are there in the college. And in that process what happens is we lose a chance. We lose a chance of we lose a chance of studying hard. I'll just excuse me for a bit. रोशन रोशन वो आवाज कम कर जरा. हाँ ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं करना. So can we go to the next slide? Next slide, please. Next slide. So therefore you analyze that why such things are happening. No taste for studies, because we don't have a proper goal. And I always give this example of Arjun on Kurukshetra. When Arjun was on Kurukshetra, you know what happens is, he suddenly at one point he gives up his weapon and he says, no, I don't want to fight. And if you analyze this problem, you know where the root cause of the problem is, that Arjun initially wanted to fight for himself. So he said, I am going to fight, I am going to do, I am going, I am. And then at one point he crashes down. He crashes down. And then God tells him, you do this for me. So God gives him a higher purpose, that you do this for me. So similarly in our life, we should be doing this for higher purpose. For higher purpose. Why should I do this? I should do this for God, I should do this for my country. Why am I studying?
engineering. I should do this for my family, I should do this for my parents, I should do this for my society. So whenever we have such higher goals, then it, becomes easy for us to get a taste for that studies. Okay, otherwise it's very difficult to get taste. Can we go to the next slide, please? I always ask the student that, has this happened with you? No concentration. You are studying in the hall and your mother is working in the hall. And then at one point, you know what happens? Your mother, after 1 hour says, पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ तू उसी पेज पे है. I think from our childhood, at some point, all of us have come across this. Okay, and here, what is our scenario? We are trying to read. We read one line, our mind runs away. We read another line, our mind runs away. Read fourth line, mind runs away. So go to the next slide. So what does our mind do? Our mind basically has two functions, hankering and lamentation. So what do I mean by hankering and lamentation? The mind has either tendency to go in the future and hanker. It goes to the future and hanker. The mind wants something and it creates fear. It creates fear. अरे दुनिया में ऑलरेडी इतने इंजीनियर है, अभी और मेरा एडिशन हो जाएगा, फिर मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं? You know, that is called as hankering and going in the future. Or the mind may go in the past and cause lamentation. The mind starts crying कि मैं क्यों इंजीनियरिंग लिया, इससे अच्छा ये करता था, वो करता था. So mind has a tendency either to go in the past or it has a tendency to go in the future. Next slide. So there is this beautiful story of a sadhu and a horse. And sadhu was sitting on the horse and going uphill. And then you know what happens is, at one point he becomes so tired that he prays to God that, God, please, ए भगवान मेरे को एक घोड़ी दे दे, घोड़ी. एंड सडनली भगवान उसके सामने घोड़ी रख देते हैं. फिर बोलते हैं अरे अच्छा है, घोड़ी मिल गया. और फिर वो घोड़ी पे जैसे बैठता है उसको रियलाइज होता है घोड़ी बहुत मोटी है, और फिर उसको रियलाइज होता है अरे घोड़ी तो प्रेग्नेंट है. और घोड़ी 10 कदम चल के अपना डिलीवर कर देती है बच्चे को. अभी वो बेबी हॉर्स का जब जन्म होता है तो वो बेबी हॉर्स चल नहीं पाता है, उसकी वजह से घोड़ी नहीं बोल हिलने को अपने बच्चे को छोड़ के जाने को तैयार है. तो उसके कारण ऐसा हो जाता है कि वो जो साधु है वो सोचता है यार ये भगवान ने दिया हुआ घोड़ी है, मैं इसको अभी ऐसे रास्ते में छोड़ के भी नहीं जा सकता. फिर वो क्या करता है, वो घोड़ी को लेके जाने के लिए, क्योंकि घोड़ी अपने बच्चे के बगैर नहीं चल रही और बच्चा चल नहीं पा रहा है, तो वो घोड़े के बच्चे को अपने कंधे पे लेके चलना चालू करता है. और 10 कदम जाने के बाद वो साधु सोचता है कि मैंने एक घोड़ी मांगी थी ताकि मैं घोड़ी पे बैठूं और ट्रैवल करूं. अभी ऐसा हुआ है कि घोड़ी मेरे ऊपर है और मैं घोड़ी को लेके चल रहा हूँ. बहुत बार अपने ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों कि हमें कुछ करना होता है और फिर ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ हमें चाहिए थी वही चीज़ हमारे प्रॉब्लम का कारण बनती है. The thing what we wanted desperately becomes the cause of our misery. Next. Because our mind basically is never satisfied. Our mind is never satisfied with whatever we get. Next slide, please. And this dissatisfaction of the mind. So how to control the mind? If you see all the religions where you can see here in this picture, there is Guru Gobind Singh, there is a Buddhist monk, there is a Muslim lady, there is a Hindu person. All of them, they talk about chanting. All of them, they talk about chanting. And they talk about how chanting, you know, we can control the mind. And in your childhood also, everybody must have heard, right? कि ज़रा 10-15 मिनट ध्यान कर ले बच्चे, वो 10-15 मिनट ध्यान करेगा तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा, तुम्हारे मार्क बढ़ेंगे,
सबने सुना है कि नहीं ऐसा? जब छोटे थे तभी एवरीबॉडी, आपको दादा दादी नाना नानी पिताजी माताजी ने सुनाया रहेगा ना कि जरा 15 मिनट ध्यान कर ले, 10 मिनट ध्यान कर ले। तो आई ऑलवेज केप्ट ऑन थिंकिंग ये 10-15 मिनट ध्यान से कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है। नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल। उसके लिए आपको एक बार ध्यान करके देखना चाहिए। जब आप ध्यान करने बैठोगे ना तभी आपको समझेगा कि जैसे ध्यान करने को बैठते हैं तो आपका मन भाग जाता है, फिर वो मन को पकड़ के लाना पड़ता है, फिर वापस मन भाग जाता है, फिर वापस वो मन को पकड़ के लाना पड़ता है, फिर वापस वो मन भाग जाता है, उसको वापस पकड़ के लाना पड़ता है। ये सब प्रोसेस में आपका माइंड स्ट्रांग हो रहा है। अगर आपको आपके मसल स्ट्रांग करना है तो उसका एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो वैसे ही सबकी बहुत इच्छा रहती है कि मेरा माइंड बहुत स्ट्रांग हो। तो माइंड अगर स्ट्रांग आपको चाहिए तो माइंड का एक्सरसाइज भी हमको करना चाहिए। अगर हमको माइंड स्ट्रांग चाहिए तो माइंड का एक्सरसाइज भी हमको करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे कि कंसंट्रेशन नहीं है, तो हमने माइंड के फंक्शन देखे। और ये अभी हमारा अगले प्रॉब्लम पे जा रहे हैं हम लोग, नो टाइम। अभी ये भी मैं सवाल आप सबसे पूछूंगा कि एग्जाम के एक दिन पहले की बात है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको सबको ऐसा नहीं लगता कि हे भगवान एक 10 दिन दे दे मुझे, 10 दिन और एक्स्ट्रा, फिर देखो मैं ये एग्जाम कैसे क्रैक करता हूँ। 10 दिन खाली दे दो, राइट। सो एक्चुअली 365 दिन हमको मिले रहते हैं, but we don't utilize those 365 days properly, and that is why at the end, before one day of the exam, we said to God ki give me 10 more days. But what about those 365 days what God had given us, a 1 year of study before exams? Next slide please. So you analyze no time spent. So basically for solution that there is no time, the solution is no time pass. I think most of you are staying in the hostel, as per what I understand. And what happens typically with people staying in the hostel is they come back from the college, then they sleep, and when they sleep they get up at 8 o'clock, then have their dinner at 9 o'clock. 10 o'clock again everybody assembles in a room, and then we start discussing on topics right from Indo-China relationships to Narendra Modi to Sharad Pawar to Uddhav Thackeray, from Congress, BJP, AAP, all these discussions go on till 12 o'clock in the midnight. And then 12 o'clock we start studying, we study till 2 o'clock. And then everybody feels that we were studying for till 2 o'clock in the night, but effectively we have studied only for 2 hours. So that should not happen. Okay. So we should not do any time pass. You know, one day before the exam, I have seen so many students, they lament कि अरे I should not have gone to Lonavala, I should not have gone to Khandala, I should not have gone here, I should not have gone there. Okay, but then we also have to realize that no, I cannot do so much of time pass. Next slide please. Can you stop sharing the screen for a second and let me see everyone? Yeah, thank you so much. So we were talking about no memory. Now has this thing happened to you that you have studied something one day before the exam, and then that same question is asked in the exam. Now you see that question, you remember the answer is on page number 3 on the left hand side bottom, but you cannot remember what is that. You just cannot remember what is that. And sometimes you see a question
And then you remember that this question, while we were sitting in the canteen 6 months back, my friend had told me the answer, and you remember that answer. You know, that is called as, sometimes we remember some things and we don't remember some things. It is a very nice shloka in the Bhagavad Gita which says, Matta smritir jnanam apohanam. From me comes the remembrance and forgetfulness. But if we study again and again, read again and again, revise again and again, that goes in. As a doctor, I would like to tell you that there is something called as a temporary memory and there is something called as a permanent memory. There are memory circuits in our body. Temporary memory circuits are different and permanent memory circuits are different. When you read some things, somebody please needs to unmute them, mute themselves. जरा सा आवाज आ रहा है बीच बीच में. Yeah. Sorry. So what I'm saying is, so whenever you do the first reading, you say कि मैंने एक बार पढ़ा है. That एक बार पढ़ा just goes to your temporary memory circuit. And after few days, if you don't revise, it completely vanishes. It vanishes so much that you open the book again and you see the topic and you feel that ये किसने पढ़ा है, ये underline किसने किया है. To this degree we forget. But only when we repeatedly read, repeatedly memorize, repeatedly, visit that page, then it goes into permanent memory circuit, and then it doesn't fade away for a long time. Okay. So can we just go to the slides? Can you start presenting the slide again? Sorry. Can we go to the slide presentation? Can we go to the next slide, please? Okay. ठीक है, no issues. I'll just continue, but you can see me and hear me now. Yeah. So just absolutely no issue. I'll just try to share on from my screen only. Just give me a second. Okay. So when we repeatedly try. So when we repeatedly try to memorize things, then what happens is it goes into a permanent memory circuit. So that is what has to be done again and again. Now we come to the next topic, problem faced, and that happens during the exams. Now during the exam time, what happens typically, one day before the exam, tension. All of us, when we study for the exams, we are good in some topics and we are bad on some topics. So we are good in some topics and we are bad in some topics. And then what happens typically is the topics which we are good at, kuch nahi hota. But few days before the exams, the topic on which we are bad, those topics starts haunting us. And we start getting dreams that the entire paper is going to come from those topics which I'm bad. And people get so scared. और तभी बच्चे बोलने लगते हैं मैं ना फेल होने वाला.
मैं ना फेल होने में, मेरा ना प्रिपरेशन नहीं हुआ है. That is negative mindset, because nobody in today's world, the syllabus for all the exams is so vast, the final exams, nobody is prepared. Let me tell you, nobody is prepared completely 100% for any exams. So इसका आपको बिल्कुल बिल्कुल उसका आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं रहता. तो आपके जो अनप्रिपेयर्ड एरियाज है, तो माइंड, जो हमारा माइंड का एक नेगेटिव टेंडेंसी रहता है, वो अनप्रिपेयर्ड एरियाज को ऊपर लाके बोलता है कि अनप्रिपेयर्ड एरिया पे से ही पूरा पेपर आने वाला है. और वो इतना अपने को घबराता है, इसके लिए कुछ लोग एग्जाम के एक दिन पहले ना हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं, वो गांव चले जाते हैं, भाग जाते हैं, रोने लगते हैं, उनको नींद नहीं आती है. नहीं, पॉजिटिव रहने का, पॉजिटिव देखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा. इसलिए थोड़ी भगवान में श्रद्धा रखना भी जरूरी. अभी इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ. स्टोरी ऑफ अ हॉर्स राइडर. देयर वाज वन हॉर्स राइडर, and this horse rider, he used to take his horse around a village. और जो भी बच्चे वो घोड़े पे बैठते थे उनको घुमा के लाता था, वो बच्चों के पेरेंट्स उसको 5 रुपए देते थे, वो खुश हो जाता था. ओके. लेकिन ऐसा होता था कि एक दिन उसका घोड़ा गुम हो गया. अभी घोड़ा गुम होने के बाद ऐसे हो गया कि सब लोग, पूरा गांव उसके घर पे आ गया, और वो जो गांव वाले लोग थे उन्होंने बोला कि अरे यार बुरा हो गया, तुम्हारा घोड़ा गुम हो गया, तुम्हारा घोड़ा गुम हो गया, ये बहुत बुरी बात है. तो फिर ऐसा होता है कि वो बोलता है नहीं, वो जो घोड़े वाला था ना, उसकी श्रद्धा बहुत बहुत दृढ़ श्रद्धा थी उसकी. और दृढ़ श्रद्धा के कारण वो बोलता है ठीक है, मेरा घोड़ा गुम हो गया, वो भगवान की इच्छा थी, whatever happens for good, no problem. Then you know what happens is he goes searching for his horse. वो अपने घोड़े को ढूंढते ढूंढते जंगल में जाता है, और जंगल में जाने के बाद, इसके बाद वाला स्लाइड, और जंगल में जाने के बाद उसको 25 घोड़े मिलते हैं वहां पे अपने घोड़े के साथ, और वो 25 घोड़े उसके घोड़े के साथ साथ वापस आ जाते हैं, और वो 25 घोड़ों को लेके गांव में वापस आता है. गांव वाले बोलते हैं अरे अच्छा हो गया, तुम्हारा एक घोड़ा गुम हो गया लेकिन तुमको 25 घोड़े मिल गए. तो फिर ऐसे होता है, वो बोलता है नहीं नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं. Then you know what happens is, while training those 25 horses, his own son falls down from one of the horse, and because his son falls down, he meets with a fracture. फिर वापस सारे गांव वाले आ जाते, बोलते अरे क्या तुम्हारे बच्चे का टांग टूट गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया. इससे पहले का स्लाइड, बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया. और पहले, ये स्टोरी खत्म होने के बाद मैं बोलता हूँ हाँ कौन से स्लाइड पे आपको रुकना है. तो बुरा हो गया, तो बोलता है नहीं नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है ठीक है, अच्छा है. देन यू नो व्हाट हैपेंस इज, वो जो गांव का, जिस राज्य में वो गांव था, उसका राजा अपने बाजू वाले राज्य के साथ युद्ध डिक्लेयर करता है, और गांव में जितने भी यंगस्टर थे उनको सबको सेना में भर्ती करता है जबरदस्ती. अभी इसके बच्चे को स्पेयर करते क्योंकि उसका टांग टूटा हुआ है, तो फिर उसके बच्चे को सेना में नहीं लेके जाते, वापस गांव वाले आते, अरे अच्छा हो गया, उसका टांग टूट गया था, उसके लिए उसको सेना में भर्ती करने को नहीं लिया, लेकिन हमारे बच्चों को लेके गए, यार अच्छा हो गया. ही सेड अभी तुम लोग मेरे घर पे आने का बंद करो, बिकॉज आप लोग हर बार सोचते हो अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ. मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बुरा हो गया, मुझे हर बार लगा कि अच्छा ही हो रहा है. तो ये स्टेज में हमको पहुंचना है कि जब भी कुछ भी होता है हमारे लाइफ में, कुछ भी होने दो हमारे लाइफ में, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ. तो हमारा जो मन है ना, वो गांव वालों की तरह है, वो कभी आपको पास आके बोलेगा अरे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, और फिर बोलेगा, कभी बोलेगा बुरा हुआ, बुरा हुआ. उसको बोलने का तू चुप बैठ, अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ. फिर टेंशन जब एग्जाम आपकी चालू हो जाती है, तभी हमको फिर वापस टेंशन आ जाता है कि कहीं फेल तो नहीं होगा मैं. एक स्लाइड जरा पीछे चलिए, जरा एक स्लाइड पीछे. ओके,
नेक्स्ट स्लाइड। तो एग्जाम के कुछ घंटे पहले, एग्जाम के कुछ घंटे पहले क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया, मेरे को कुछ याद ही नहीं आएगा, मैं कुछ लिख पाऊंगा कि नहीं। ऐसा लगता है कि हाथ पैर की पूरी शक्ति चली गई। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ निगेटिव थॉट प्रोसेस। हम लोग हमारे इसमें देखते हैं ना कि हमारे खुद के हॉस्पिटल्स में कुछ पेशेंट्स हमारे जो है, एक मिनट, रोशन, हमारे कुछ पेशेंट्स, मतलब दो पेशेंट्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स रहते हैं, दोनों को सेम बीमारी है, दोनों को सेम बीमारी है, लेकिन एक जो है वो इतना पॉजिटिव जो होता है ना, वो जल्दी ठीक हो जाता है, और जिसका निगेटिव थॉट प्रोसेस रहता है वो ठीक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। एक स्लाइड पहले। और एग्जाम हम लोग अल्टीमेटली देख के आते हैं, उसके बाद देखिए एक स्टूडेंट के माइंड में क्या ख्याल आते हैं। वो स्टूडेंट को लगता है कि मेरा पेपर किसी खड़ूस से एग्जामिनर के हाथ में गया तो, या फिर दूसरा थॉट आने लगता है, क्या मैंने जो लिखा वो बराबर लिखा, पूरा पेपर लिखा कि नहीं। मतलब इतना निगेटिव थॉट हमारे मन में आते हैं, वो अब हमको इतना, हम लोग उसमें इतने घबर जाते हैं, इतने घबराते हैं हम लोग कि ये क्यों होता है। कि हमारी बिल्कुल श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर, हमारी श्रद्धा नहीं है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी होगा ठीक होगा। हाँ, उसमें मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक देयर वाज वन पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ बोट, और बोट से ट्रैवल करते करते वो एक आइलैंड पे पहुंच गया, लेकिन वो आइलैंड पे पहुंचने के पहले वो बोट टूट गई, उसका सामान डूब गया, उसको सामने आइलैंड दिख रहा था, तो वो कैसे 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 करके स्विमिंग करके वो आइलैंड पे पहुंच जाता है। आइलैंड पे पहुंचने के बाद उसको रियलाइज होता है कि मैं आइलैंड पे मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई है ही नहीं इधर। तो फिर वो कैसे कैसे उधर जीने लगता है, उधर के फल खा के, उधर जो भी घास फूस है वो सब खा रहा है, और वो अपना घर बनाता है वहां पे। और वहां पे घर बनाने के बाद एक दिन वो जंगल में गया है लकड़ी लाने को, और लकड़ी लाके वो वापस आ रहा है, तो उसको सामने दिखता है कि जो लाइटनिंग हो रहा है स्काई में, वीजा चमकता है, और वो लाइटनिंग सीधा उसके हट पे गिर जाता है। उसका जो झोपड़ी है ना, उस पे बिजली गिर जाती है आकाश से। और फिर वो भगवान को बोलता है, अरे एक तो मैं अकेला हूं यहाँ पे, मैंने कैसे वैसे ये झोपड़ी बांधा है, और तुम बिजली गिराते हो, वो भी निशाना लगा के मेरे ही झोपड़ी पे, और पूरा झोपड़ी जला दिया। कैसे जी रहा हूं मैं, तुमको समझ रहा है क्या। वैसे आकाश में देख के भगवान को गाली पे गाली, गाली पे गाली देते जा रहे हैं। उसको सडनली एक आवाज सुनाई देता है, अरे क्या आपने हमको बुलाया। तो वो देखता है तो एक छोटी सी नाव में, छोटी सी बोट में एक बोट का कैप्टन आया है। तो देखो उधर लंबा हमारा बोट दिख रहा है तुमको, हमारा हम लोग जा रहे थे इस रास्ते से, तो हमको आपका फायर दिखाई दिया, तो हमको लगा ये आइलैंड पे कोई अटका हुआ है जिसको हमारी मदद की ज़रूरत है। बिकॉज ये जो नेवल लैंग्वेज है ना, नेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कि जो नेवी में जो लोग होते हैं उनका ऐसा लैंग्वेज है कि अगर आप कहीं किसी जगह पे अटक गए, आग लगाओ, तो आजू बाजू से कोई नाव जा रहा है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे कोई अटका हुआ है, और फिर वो आके आपको रेस्क्यू करेंगे, आपको मदद करेंगे। तो फिर ये आदमी तो बोलते हैं, आपको आपने बुलाया, तो बोलते नहीं बुलाया। तो बोले हम चले जाएं, बोले नहीं नहीं चले मत जाओ, मैं आ रहा हूँ आपके साथ, एक मिनट। फिर वो वापस ऊपर देखते हैं,
बोलते भगवान सॉरी, हाँ सॉरी, वो बिजली तुमने बराबर से निशाना लगा के मेरे झोपड़ी पे क्यों डाला, ये मुझे अभी समझ में आया। अभी मुझे समझ में आया कि आपने मेरा झोपड़ी जलाया क्योंकि आपको मालूम था बाजू से एक बड़ा नाव जा रहा है और वो बड़े नाव के लोग फिर वो जलती हुई झोपड़ी का आग देख के मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। ये आपको मालूम था, ये आपका अरेंजमेंट था, मैं समझ नहीं पाया आपके प्लान को, सो सॉरी। उसी के साथ साथ एक छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूँ। एक साइंटिस्ट था, वो ककून को लेके बैठा था और वो ककून में से कैटरपिलर बाहर आ रहा था। फिर वो देख रहा था वो कैटरपिलर बहुत स्ट्रगल मार रहा है बाहर आने के लिए, तो फिर वो क्या करता है, वो ककून का होल बढ़ाता है, उसमें से कैटरपिलर बाहर आता है, इजीली बाहर आता है। और फिर वो कैटरपिलर कभी उड़ नहीं पाया, बिकॉज वो ककून में से जब वो कैटरपिलर बाहर आता है तो वो जो स्ट्रगल करता है बाहर आते समय, उस स्ट्रगल से उसके विंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं। यह हमारे जूम का कैमरा ऑफ हो सकता है, सॉरी स्क्रीन ऑफ हो सकता है थोड़ा टाइम के लिए, स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग, या थैंक यू सो मच। सो अभी ये मेरे लास्ट के 2 स्टोरीज हैं। तो फर्स्ट स्टोरी ऐसा है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोरी ऑफ अ बेगर। तो स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु वाज कमिटिंग सुसाइड। तो एक आदमी ना कुछ अपने ज़िंदगी में परेशान है, वो निश्चय करता है कि अभी सुसाइड करने का, आजकल बहुत चर्चा चल रहा है सुसाइड के ऊपर, तो वो निश्चय कर लेता है कि सुसाइड कर, वो निश्चय करता है कि सुसाइड करना है। फिर वो एक माउंटेन के टॉप पे जाके, माउंटेन पे कैसे पॉइंट्स रहते हैं ना, पॉइंट्स, पॉइंट पे से वो डिसाइड करता है, वो आता है अपना बाइक लगाता है, फिर वो पॉइंट पे जाता है, नीचे देखता है, कंफर्म करता है कि यहाँ से जंप मारूंगा तो 100% मरूंगा करके। वो कंफर्म करना ज़रा ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा हो जाएगा कि आप कहीं से जंप मारेंगे, जैसे लोग 16वें माले से जंप जब मारते हैं तो आवाज़ आता है कि आ ढप, और पहले माले से जब जंप मारते तो आवाज़ आता है ढप आ। तो उसको देखना था कि ढप आ नहीं होना चाहिए, आ ढप होना चाहिए। उसको सुइसाइड में कंफर्म था, करना था, तो इसके लिए वो देखता है और सब नीचे देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि अभी जंप मारना है। तो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और फिर चालू करता है सुइसाइड करने के लिए जाने का, जंप मारने का। तो एक भिखारी जो वहां पे बैठा हुआ था ना, वो भिखारी सब देख रहा है कि वो आया, बाइक लगाया, फिर उधर से देखा, फिर अभी पोजीशन ले रहा है जंप करने की। वो इधर पोजीशन में, ऑन योर मार्च, तो बोलते हैं 1 मिनट 1 मिनट, बोलते हैं ये बाइक तुम्हारा है, बोलते हाँ बाइक मेरा है। तो बाइक का चाबी तो दे दे यार, तू नीचे जा रहा है, तेरे को बाइक का क्या जरूरत है, बोलता है ये लो चाबी। फिर वापस वो पोजीशन लेता है सुइसाइड करने के लिए, जंप मारने के लिए, ऑन योर मार्च गेट सेट, बोलता है 1 मिनट, वॉलेट है क्या तुम्हारे पास, वॉलेट, बोलता है, तो वॉलेट मेरे को देना यार, तू नीचे जा रहा है, तेरे को पैसे का क्या जरूरत है नीचे। फिर वो वॉलेट, ऑन योर मार्च गेट, बोलता है 1 मिनट, तुम्हारा घर है क्या इधर आजू बाजू में कहीं, बोलता है नहीं इधर, तो घर का चाबी दे दो, अभी तू नीचे जा रहा है, तेरे को घर का जरूरत नहीं है, तो मैं उधर रहता हूँ। अरे ठीक है, घर का चाबी भी दे। वापस वो पोजीशन लेते ऑन योर, तो ये लास्ट टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जरा तेरा टी शर्ट तो दे मेरे को, तो टी शर्ट, अभी तू नीचे जा रहा है, तेरे को कपड़ा क्यों चाहिए, तो शर्ट और पैंट भी देते जा, अभी मैं इधर नंगा बैठा हूँ टॉवेल पहन के, शर्ट और पैंट देगा तो मैं ऐसा बाइक पे बैठ के जरा इज्जत से तो जा सकूंगा तुम्हारे घर पे। फिर वो शर्ट, अपना टी शर्ट निकालने के लिए ऐसे हाथ करता है, और जब टी शर्ट निकाल रहा है तभी ये सोचता है, ये भिखारी सामने बैठा है, इसके पास बाइक नहीं है, इसके पास वॉलेट और पैसा नहीं है, इसके पास घर नहीं है, इसके पास कपड़ा नहीं है,
और वो इधर बैठ रहा है और मैं नीचे जा रहा हूँ। एक्चुअली उसको कूदना चाहिए, वो इधर बैठा है, मेरे पास सब कुछ है और मैं नीचे कूद रहा हूँ। तो what I'm telling you friends is many times in our life we just get haunted by and disturbed by things which we don't have. मेरे पास ये है, ये है, ये है, पर ये नहीं है। मेरे पास ये है, ये है, ये है, बट वो नहीं है। मेरे पास ये है, ये है, ये है, बट ये नहीं है। तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। जो है हमारे पास क्या है, उस पर हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो उससे हमारे लाइफ में सेटिस्फैक्शन आ जाता है, सेटिस्फैक्शन। हम लोग नहीं है का लिस्ट अगर लाइफ में बनाते बैठे तो वो लिस्ट इतना बड़ा हो जाता है कि हमको सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। हमको चाहिए पीस ऑफ माइंड, बट माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ व्हाट वी डोंट हैव। बट इफ वी थैंक गॉड फॉर व्हाट वी हैव, देन वी विल बी एट पीस। और इसके बाद मेरा लास्ट स्टोरी है, इसके लिए स्लाइड्स दिखाने का जरूरत नहीं है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द क्रो। एक कौवा था, बहुत मजे की जिंदगी ले रहा था, एकदम आराम से जी रहा था। एक दिन ऐसा हो जाता है कि वो अपना जरा सा जंगल से थोड़ा दूर जाता है और उधर उसको एक परिंदा, सफेद कलर का परिंदा दिखता है। तो परिंदा देखता है तो फिर वो एकदम डिप्रेस होता है, यार ये सफेद है और मैं काला हूँ। तो परिंदे को जाके बोलता है, यार तू सफेद है, मैं काला हूँ। परिंदा बोलता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सुखी हूँ, लेकिन तुम और मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट है। असली सुखी आदमी तो पैरेट है, पैरेट तोता। उसके दो कलर है, हरा रंग है और लाल रंग की चोंच है। फिर वो पैरेट के पास जाता है, बोलता अरे तुम तो सबसे सुखी हो। पैरेट बोल रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मैं मेरे पास दो कलर है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने मोर को देखा, मोर, पिकॉक, और मैंने रियलाइज किया यार ये पिकॉक सबसे सुखी है। बिकॉज पिकॉक के पास पिकॉक के पास अनंत रंग है, बहुत रंग है। फिर वो पिकॉक को मिलने जाता है, पिकॉक को बोलता है, यार तू तो बहुत सुखी है। तो पिकॉक बोलता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था बहुत सुखी, लेकिन क्योंकि मैं सुंदर हूँ, देखो मुझे केज में रखा है। लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मेरे पंख, मेरे जो मोरपीस है ले लेते हैं। तो फिर उसके कारण वो बोलता है कि मैं परेशान हो गया, कोई मेरे को शांति से जीने नहीं देता। मैं सोचता हूँ, ये मैंने देखा, मैं ये मुझे देखो ये कैसे जू में लाके रखा है। वो पिकॉक बोलता है, ये जू में लाके मुझे रखा है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं एक कौवा होता ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि अगर मैं कौवा होता था तो कोई मेरे पीछे नहीं आता था पकड़ने को। आप में से कितने लोग बचपन में कौवे के पीछे भागते थे पकड़ने के? कोई नहीं भागता। कोई कभी किसी कौवे को देखा है बाग में बंद करके रखा? कभी देखा है किसी कौवे को पिंजरे में रखा है? बोलता मैं कौवा होता था बहुत अच्छा होता। तो देखो, कौवे को लगता है परिंदा सुखी है, परिंदे को लगता है तोता सुखी है, तोते को लगता है मोर सुखी है, और मोर को लगता है मेरे को वापस कौवा बनना है, बस कौवा सबसे सुखी है। यह हमारी जिंदगी का भी स्टोरी है। हमारे लाइफ में हम लोग जब छोटे थे ना, स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में हाफ पैंट पहनते थे, तो हम लोग ये हाफ पैंट पहनने वाले लोग 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को देखते थे, यार ये लोग तो फुल पैंट पहनते, और हम लोग बहुत दुखी हो जाते थे। लेकिन 10th स्टैंडर्ड का आप अगर जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाते हो तो आपको कॉलेज के बच्चे सुखी लगते हैं, अरे यार
उनके पास स्कूल ड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से रहो, स्कूल बैग भी नहीं है। फिर कॉलेज में गए, जूनियर कॉलेज में, फिर समझा नहीं नहीं जिसको इंजीनियरिंग में मिला है वो सुखी है। फिर इंजीनियरिंग में गए तो फिर समझा नहीं 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 नहीं, जिसको मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लगा है वो सुखी है। फिर समझा नहीं 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 नहीं, जो मल्टीनेशनल कंपनी पे टॉप पे है ना वो सुखी है। फिर हम टॉप पे गए, रात को 1 बजे तक काम कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर सुबह 7 बजे उठ के वापस काम पे भाग रहे हैं। तो वापस जब काम पे भाग रहे सुबह 7 बजे उठ के, तभी हमारे मन में ऐसे ख्याल आ रहा कि हम लोग धीरे से ऐसे हमारे गाड़ी में से देखते हैं हाफ पैंट में बच्चे जा रहे हैं, हाफ पैंट पहन के बच्चे जा रहे हैं स्कूल को, और हम लोग जा रहे हैं ऑफिस। तो हमको लगता है ये हाफ पैंट वाले बच्चे कितने सुखी हैं, मस्त पानी में खेलते हैं, बारिश में भीगते हैं, मिडल रिसेस में खेलते हैं, शॉर्ट रिसेस में खेलते हैं, लॉन्ग रिसेस में खेलते हैं, घर पे आके खेलते हैं, फिर पेरेंट्स जब मारते हैं तभी थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, फिर धमाल मस्ती करते हैं, फिर टीवी देखते हैं, फिर कंप्यूटर देखते हैं, फिर सोते हैं। क्या लाइफ है इनका, ना इनकम टैक्स का टेंशन, ना इनकम का टेंशन, ना बिल भरने का चक्कर, ना क्रेडिट कार्ड का चक्कर, कुछ नहीं। तो फिर बट द पॉइंट आई एम सेइंग इज, एक हाफ पैंट वाले को लगता है फुल पैंट वाले हैप्पी है बच्चा, फुल पैंट वाले को लगता है कॉलेज वाला बच्चा अच्छा है, कॉलेज वाले को लगता है इंजीनियरिंग कॉलेज का अच्छा है, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले को लगता है नौकरी मिला वो अच्छा है, जिसको नौकरी मिला उसको लगता है जो जो मैनेजर के पोजीशन पे है टॉप वो अच्छा। तो यही हमारे ज़िंदगी का साइकिल है कि हमको ऐसे लगता है कि दूसरा आदमी सुखी है, या फिर हमको अभी लगता है कि मैं आज नहीं सुखी होऊंगा, मैं भविष्य में निश्चित रूप से सुखी हो जाऊंगा। आई विल बी हैप्पी इन द फ्यूचर, नॉट टुडे। आज नहीं सुखी हो सकता, सुखी हो सकता हूँ फ्यूचर में। तो ये थॉट प्रोसेस हमको छोड़ना है कि फ्यूचर में सुखी हो जाऊंगा करके। हम सुखी हो सकते हैं आज, अभी, इसी वक्त। हर बार आप ऐसे ही सोचते रहोगे ना ये होगा भविष्य में, ऐसा ऐसा होगा, फिर सुखी होगा। तो इसके लिए हमको थोड़ी ध्यान धारणा, फिलोसॉफी के बुक्स जैसे कि ओके, ये सब हमको पढ़ना चाहिए। तो इसके साथ ये मैं लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई एम रियली thankful for Aurangabad team to call me for this session live. Thank you so much.